بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نعمان کو اس دن دکان بند کرنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اس کا مال آیا تھا اور وہ اسی کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ جلد گھر پہنچنے کے لیے وہ گاڑی معمول سے تھوڑا تیز چلا رہا تھا۔ گھر سے بھی جلد آنے کے لیے فون آ رہے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی مسافت وہ 20 منٹ میں طے کرتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ گھر کے اندرونی مرکزی دروازے سے جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، گھر کو رنگ برنگ غباروں اور دوسری آرائشی چیزوں سے سجا پایا، پر یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ آج کس کی سالگرہ ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی اور بچے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ پھر اسے خیال آیا کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی سالگرہ کا دن بھول گیا تھا۔ نعمان اور اکبر 2 بھائی تھے۔ اکبر نعمان سے بڑا تھا۔ اکبر گاؤں میں اپنے باپ دادا کی بہت ہی شاندار حویلی میں رہتا تھا، وہیں زمینوں پہ اناج اگاتا اور بے حساب دولت کے باوجود بھی اس میں تکبر یا غرور نہیں تھا۔ وہ انتہائی نیک انسان، دوست اور پرہیزگار انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کی بیوی بھی بہت سمجھدار اور نیک نیتی کا پیکر تھی۔ اس کے برعکس نعمان کچھ کرنے کا خواب لے کر 8 سال پہلے اپنی بیوی کے کہنے پر شہر آ گیا تھا، جسے شہر کی زندگی گاؤں کے مقابلے میں بہتر محسوس ہوتی تھی۔ شہر میں اس نے اپنا الیکٹرانکس کا کام شروع کیا تھا۔ دن رات محنت کے پھل میں بہت جلد ہی اس نے ترقی کی۔ اس کی دکان شہر کے جانے پہچانے الیکٹرانک ڈیلرز میں شمار کی جانے لگی۔ شہر میں رہنے اور بھرپور محنت کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑا لاابالی قسم کا ہو گیا تھا، گھر پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ اکبر کی بیوی کے مقابلے میں نعمان کی بیوی بہت چڑچڑی، بدزبان اور بات پہ بات جھگڑنے والی تھی۔ اس کی اپنی جٹھانی سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ آج آنے میں دیر کر دی آپ نے؟ نعمان کی بیوی نے پوچھا۔ ہاں، وہ کچھ سامان آیا تھا، اسی کے حساب کتاب میں دیر ہو گئی۔ خیر، نعمان کی سالگرہ اس کے گھر والوں نے منائی۔ اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور پوچھا، پاپا اس بار ہم گرمیوں میں کہاں جائیں گے؟ نعمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اس بار ہم اپنے گاؤں طیب ابا کے گھر جائیں گے۔ یہ بات اس کی بیوی نے سن لی تو بس جیسے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اور کوئی جگہ نہ ملی تھی آپ کو جانے کو؟ لوگ تو مری کشمیر اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور یہ جائیں گے اپنے گاؤں۔ نعمان نے اسے بہت سمجھایا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں ہم وہاں نہیں گئے۔ اکبر بھائی اور بھابھی نے بھی کتنی دفعہ آنے کا کہا ہے، وہ تو بس منہ پہ کہتے ہیں، باقی دل کے حال تو خدا جانتا ہے۔ نعمان کی بیوی کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی بولے جا رہی تھی، اب بس بھی کرو، تم تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے گاؤں۔ نعمان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر بچے اڑ گئے کہ انہیں گاؤں ہی جانا ہے۔ خیر، بچوں کی ضد کے آگے جمیلہ کو بھی ہار ماننا پڑی۔ نعمان نے دکان کے سب سے بھروسے والے آدمی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کام ہو تو واٹس ایپ پر پوچھ لینا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ دوسری سب چیزیں بھی اسے تفصیل سے سمجھا دی۔ دکان سے واپسی پر اس نے ٹرین کے ٹکٹ لیے اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں کو ٹکٹ دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، آخر ان کا یہ پہلا ریل کا سفر تھا۔ جمیلہ چائے لے کر آئی تو نعمان نے اسے ٹکٹ دیتے ہوئے کہا، سنبھال کر رکھ دینا۔ ٹکٹ دیکھتے ہی جیسے جمیلہ آگ بگولا ہو گئی، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں جو ریل میں جائیں گے؟ دنیا ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے، آپ ہیں کہ ریل میں جائیں گے؟ ارے میری جان، بچوں نے کبھی ریل کا سفر نہیں کیا، اسی لیے ہم ٹکٹ لائے ہیں، تم ان کے چہروں پر خوشی تو دیکھو۔ نعمان نے ایک بار پھر اس کا غصہ دیکھ کر اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ لوگ ریل میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ بچوں کی تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے سفر میں جمیلہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا،
12 घंटे की तवील मसाफत के बाद वो लोग गांव पहुँचे। स्टेशन पे अकबर ने गाड़ी भिजवाई थी। गाड़ी में भी जमीला बेगम का मुंह बंद नहीं हुआ। सरगोशी में नुमान से कहा, ये है तुम्हारी इज्जत, गाड़ी भिजवा दी, भाई को खुद लेने नहीं आए अकबर भाई। खैर उसी नोक झोंक में वो लोग हवेली पहुँचे। हवेली बहुत ही शानदार थी। मरकजी दरवाजे पर ही अकबर और दुर्दाना ने उनका इस्तकबाल किया। हवेली कुल 12 कमरों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 4 कमरे निचली मंजिल पर और बाकी 8 ऊपर वाली मंजिल पर वाक़या थे। अंदरूनी मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी छत पे निहायत ही कीमती फानूस लगा हुआ था। गोया अकबर की मकान की हैसियत का अंदाज़ा इससे भी हो जाता था कि वहाँ पर कि हवेली की आराइश भी काफ़ी बेशकीमत चीज़ों से की गई थी। आप लोग नहा लें, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ, दुर्दाना बोली और फिर उन्हें उनके कमरों तक छोड़ आई। खाने की मेज़ पे अकबर ने नोमान से शहर के हाल अहवाल पूछे और दुर्दाना जमीला से बात करने में मशगूल हो गई। खाने के बाद सब बैठ के बातें कर रहे थे। फिर अकबर ने दुर्दाना को इशारा किया और वो बोली, जमीला वैसे तो इस घर पर तुम्हारा भी पूरा हक है। चूँकि तुम शादी के बाद ज़्यादा अरसा इस घर में नहीं रही हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और बच्चे इस घर में रहते हुए चंद बातों का ख्याल रखो, यही हम सब के लिए बेहतर है। दुर्दाना बोली, मतलब अब आप सिखाएंगे कि हमें कैसे रहना है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमें बड़े घर में रहने के तौर तरीके ही नहीं आते। जमीला ने जलकर जवाब दिया, अरे शहर में हमारा मकान भी किसी महल से कम नहीं है। जमीला बिना कुछ सोचे समझे बोली जा रही थी, अरे भाभी, दुर्दाना का वो मतलब नहीं जो आप समझ रही हैं। अकबर बोला, अरे अरे सब जानती हूँ मैं। ये कहते हुए जमीला गुस्से से उठकर चली गई। नोमान तुझे तो पता है ना? अकबर ने नोमान से पूछा। जी भाई आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगा। और बच्चों कैसा लगा तुम लोगों को गाँव और अपनी हवेली? अब तो बहुत बदल गई है ना? इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे ही गांव की सैर को चलेंगे। अकबर बच्चों को खुश होता देखकर बोला। नुमान जमीला को समझा रहा था, देखो जमीला, भाभी के कहने का वो मतलब नहीं जो तुम समझ रही हो। अरे अरे मैं सब समझती हूँ, ये बस अपना रूप दिखाना चाहती हैं, जैसे ये घर उन्हीं का है। जमीला की जुबान तो कैंची से भी तेज चल रही थी। अगले रोज़ फजर के वक्त नुमान के कमरे में दस्तक हुई। वो उठा और घड़ी देखी, 5 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? खैर उसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई नहीं था। वो अपना वहम समझकर सोने के लिए अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि दस्तक दोबारा हुई। वो चढ़कर उठा और दरवाज़ा खोला मगर इस बार भी कोई नहीं था। खैर दोबारा अपना वहम समझकर वो लेट गया। अभी बमुश्किल उसकी आंख लगी होगी कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो डर के मारे उठ बैठा। सोचा जमीला को उठाए, फिर सोचा उसे उठाऊंगा तो वो और फसाद खड़ा कर देगी। फिर वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। डरते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो नीचे अकबर नमाज के लिए जा रहा था। नुमान ने सोचा भाई से बात करे, फिर ख्याल आया कि अभी वो जल्दी में होंगे। वो वापस अपने कमरे में आ गया। फिर सूरज चढ़ने तक उसे नींद नहीं आई। सुबह नाश्ते के बाद अकबर अपनी ज़मीनों पर जा रहा था। नुमान ने कहा, भाई मुझे आपसे कुछ कहना है, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ हाँ कहो नुमान, क्या बात है? फिर नुमान ने अपने साथ होने वाले वाक़े की तफसील बताई। अरे कुछ नहीं नुमान, तुम्हारा वहम होगा। अकबर बोला, भाई वो दस्तक वहम हो सकती है, पर वो थप्पड़? भाई कहा ना वहम होगा। ये कहकर अकबर ज़मीनों पर निकल गया। नुमान की जवान साल बेटी को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक़ था और गांव में उसके लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो कुदरती मनाज़िर को अपने कैमरे में महफूज करे। इस शौक़ को पूरा करने के लिए उसने दुर्दाना से बाहर जाने की इजाज़त चाही। उसने ये कहकर इजाज़त दे दी कि ज़्यादा दूर न जाए वरना वो भटक सकती है। इजाज़त मिलने पर वो ऐसे खुश हुई जैसे उसे कारून का ख़जाना मिल गया हो। फिर वो नुमान के पास आई और उससे इजाज़त मांगी तो वो बोला, मैं और गुड्डू भी साथ चलते हैं, बाहर ताज़ा हवा का मज़ा ले लेंगे। ये सुनकर तो तहरीम का मूड ऑफ हो गया क्योंकि वो अकेले जाना चाहती थी। वो सब बाहर जाने लगे तो जमीला ने देख लिया। जब उसे पता चला कि वो लोग बाहर जा रहे हैं तो फिर से तानों की बारिश कर दी।
हाँ, मुझे तो यहाँ नौकरानी बना कर लाए थे, ना घूमना फिरना तो तुम लोगों को ही है ना, मुझे तो लेकर जाना नहीं। मैं सिर्फ तुम लोगों के काम करने के लिए बची हूँ। जमीला बोलती रही। उसकी बातों पर न नुमान ने तवज्जो दी, ना ही बच्चों ने कोई बात कही। फिर वो सब बाहर निकल गए। टहलते टहलते वो लोग अकबर की ज़मीनों तक आ गए थे। तहरीम ने इस बार जी भर कर तस्वीरें खींची। उसने मुख्तलिफ मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। वो बहुत खुश थी क्योंकि ये तस्वीरें शहर में उसने अपनी सहेलियों को दिखानी थीं। जब सब लोग थक गए, खाने का वक्त हो चुका था, वो लोग अकबर के साथ ही वापस घर आ गए। दोपहर के खाने की मेज़ पर अकबर ने नुमान से कहा, भाई तुम सुबह चला करो मेरे साथ नमाज में। वो बड़े वाले ज़िम्मेदार साहब हैं ना, वो भी पूछ रहे थे तुम्हारा। वैसे भी नमाज में काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, इसी बहाने तुम लोगों से मिल भी लोगे। ये सुनकर नुमान बोला, भाई आपको तो पता है ना कि हम शहर वाले लेट उठने के आदी होते हैं। गांव में तो सब लोग सुबह सवेरे ही जाग जाते हैं, यहाँ आकर एकदम से जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल है। नुमान ने कहा। शाम का वक्त था। तहरीम नहाकर गीले बालों के साथ बरामदे में टहल रही थी। इतने में उसे दुर्दाना ने देख लिया। दुर्दाना जल्दी से दौड़ती हुई उसके पास आई, उसके बालों को दुपट्टे से ढांपा और बोली, प्यारी गुड़िया, शाम के वक्त लड़कियां गीले बालों से खुले आसमान तले नहीं निकलती। हमारे बड़े कहा करते थे और हमने सारी जिंदगी इन बातों पर अमल किया है। उसने प्यार से तहरीम को समझाया तो वो भी मान गई और अंदर चली गई। मगर तहरीम को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। वो अलग बात थी कि वो दुर्दाना ताई की वजह से चुप हो गई थी। वो इस कदर खुश अखलाक थी और प्यार से बात समझाती थी कि उनकी बात टालने का जी नहीं करता था। मगर ये सवाल उसके जहन में रह गया था कि लड़कियां क्यों खुले बालों बाहर नहीं निकल सकती। शाम को माँ बेटी बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो तहरीम ने माँ से पूछ लिया, माँ शाम के वक्त लड़कियां गीले बालों से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? लो जी, ये किसने कह दिया? जमीला ने पूछा। अम्मी वो ताई जान कह रही थी। अरे छोड़ो, ये सब दकियानूसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। उसको अपनी बेटी की आज़ादी से ज़्यादा दुर्दाना को नीचा दिखाने की पड़ी थी। मगर उसने यहीं पर बस नहीं किया। सुबह होते ही वो दुर्दाना के पास गई। भाभी बुरा मत मनाना, मगर मुझे आपसे कहना था कि मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनको अपने फरसुदा ख्यालात से दूर ही रखिए तो अच्छा होगा। मेरे बच्चों को उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ाएं। अरे भाभी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि गीले बालों से बाहर न जाए। दुर्दाना ने वजाहत की, मगर जमीला नाक भूं चढ़ाकर वहाँ से निकल गई। अगली सुबह नुमान को फिर महसूस हुआ कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार वो डर के मारे उठ बैठा कि कहीं दोबारा थप्पड़ ही न पड़ जाए। फिर उसे अकबर की बात याद आ गई। उसने वज़ू किया और तैयार होकर अकबर के साथ फजर की नमाज में चला गया। बच्चों के लिए माँ बाप बेहतरीन उस्ताद होते हैं और ख़ुसूसन माँ तो अपनी बेटियों के लिए एक रोल मॉडल होती है। बस जो ही माँ ने कहा तो तहरीम ने फ़ौरन ताई की बात को अपने जहन से निकाल दिया और फिर अगली शाम वो नहाकर गीले बालों के साथ बाहर जा रही थी। दरअसल वो शाम के वक्त कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद करना चाहती थी। वो घर से निकली और ट्यूबवेल जाने वाली पगडंडी से चलने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाल मजबूती से पकड़ लिए हों। उसने बहुत चाहा कि वो आगे बढ़ जाए, मगर बाल पकड़ने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मजबूरी में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिर तहरीम बहुत कोशिश के बाद अपना सर घुमाने में कामयाब हो गई। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक ज़ोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि सब सुनकर बाहर आ गए। तहरीम को उठाकर अपने कमरे में ले गए। दुर्दाना भाभी, आपने क्या जादू टोना कर दिया मेरी बच्ची पर? जमीला तहरीम की हालत देखकर उस पर बरस पड़ी। अरे अरे जमीला, अब तो तुम हद से बढ़ रही हो। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने दवा दी और कहा कि शायद ब्लड प्रेशर कम हो गया है, फिक्र की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब के आने से जमीला और दुर्दाना की लड़ाई रुक गई। उस रात जमीला की न जाने किस पहर आँख खुली। उसे प्यास महसूस हुई तो उसने देखा बोतल में पानी ख़त्म हो चुका था, इसीलिए उसे नीचे बावर्ची खाने में जाना पड़ा।
अभी वो दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि उसे कुछ रोशनी महसूस हुई। उसने झांक कर देखा तो उसके औसान खता हो गए। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। बच्चों की नज़र जमीला पर पड़ी तो आन की आन वो जमीला के पास आ गए। अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगे, मगर जमीला का डर के मारे बुरा हाल था। पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। फिर सब बच्चों ने एक ज़ोरदार कहकहा मारा और गायब हो गए। कुछ देर तक जमीला वहीं साकित खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आया कि यह हकीकत है या ख्वाब। फिर वो कमरे में गई और नुमान को उठाया। उसने सभी बात नुमान को बताई। नुमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें कौन डरा सकता है, सो जाओ, ख्वाब देखा होगा। जमीला ने सोचा अगर ये बात किसी और को बताई तो सब मेरा मजाक न उड़ाएं। खैर, इसीलिए वो चुप हो गई। अगली सुबह नुमान के साथ फिर वही वाक़या हुआ। वो तैयार होकर कमरे से निकला तो देखा नीचे वाले हिस्से में कोई नमाज पढ़ रहा है। लगता है आज अकबर भाई का घर पर ही नमाज पढ़ने का प्रोग्राम है। वो सीढ़ियों से नीचे आया तो नीचे कोई नहीं था। उसने नज़र इधर उधर दौड़ाई। इतने में उसने अपने पास अकबर भाई को देखा जो कमरे से बाहर आ रहे थे। नुमान को देखते ही बोले, आज तुम जल्दी उठ गए? उसने अकबर से पूछा कि आप अभी आए हैं क्या? हाँ भाई, अभी तुम्हारे सामने ही तो कमरे से निकला। अकबर बोला, तो वो कौन था? नुमान ने पूछा। अरे भाई, क्या रात को सोया नहीं? नुमान ने पूछा। और दोनों बातें करते करते घर से निकल गए। उस दिन नुमान और गुड्डू अकबर के साथ गांव की सैर को निकल पड़े। दुर्दाना बाजी बावर्ची खाने में काम कर रही थी। जमीला टीवी देख रही थी। इतने में तहरीम ने ऊपर से ही जमीला से कुछ पूछा। उसका पूरा जोर हिफाजती रेलिंग पर था। इतने में उसका पाँव फिसला और वो ऊपर से नीचे गिरी। जमीला की तो चीख निकल गई, पर अचानक ही जैसे तहरीम को किसी ने थाम लिया हो, वो हवा में मुअल्लिक हो गई। फिर जैसे किसी ने आहिस्ता से उसे नीचे उतार दिया हो। चीख की आवाज़ सुनकर दुर्दाना भागती हुई आ गई और पूछा क्या हुआ। जमीला ने उसे सब बताया। तकरीबन लड़ते हुए बोली, आखिर तुमने हमसे किस बात का बैर रखा हुआ है? क्यों मेरी बच्ची पर जादू टोना कर रही हो? वो तो खुदा का शुक्र कि हमारी नेकी काम लग गई और हमारी बच्ची बच गई, वरना तुम्हारे जादू ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गोया गांव में तो दुर्दाना रहती थी, मगर जहालत जमीला में कूट कूट कर भरी थी। वो तहरीम को लेकर अंदर कमरे में चली गई। दुर्दाना सोच में पड़ गई कि आखिर ये क्या मौजा है। शाम को सब लौटे तो जमीला ने नुमान को कहा कि अब हम यहाँ एक दिन नहीं रुकेंगे। पर बात क्या है? ये अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? नुमान ने पूछा। मुझे नहीं, भाभी को क्या हुआ है उनसे पूछें। पता नहीं क्यों हमसे इतना हसद रखती हैं। अरे हमसे दुश्मनी है तो हमसे आमने सामने बात करें, बच्चों को क्यों बीच में लाती हैं? अगर आपसे कुछ कहा नहीं जाता तो मुझे कहें, मैं बोल देती हूँ। जमीला गुस्से में बिफरी हुई थी। पर मुझे कुछ बताओगी तो मैं कुछ कहूँगा ना। नुमान भी काफ़ी गुस्से में आ चुका था। उसे पता था कि गलती 100% जमीला ही की होगी। आपकी भाभी ने हम पर काला जादू करवाया है। आज तो हमारी नेकी काम आ गई, वरना बच्ची को न जाने क्या हो जाता। जमीला तो खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। नुमान इसे बुड़बुड़ाता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। रात को दुर्दाना ने अकबर से सब मौजा कहा तो अकबर कहीं फिर से तो वो नहीं ऐसा नहीं है। नुमान ने दुर्दाना की बात काटते हुए कहा, मगर दिल में शक उसके भी पैदा हो चुका था। उस रात नुमान ने तहरीम को बुलाकर सब तफसील पता की और कुछ सोचने लगा। न जाने रात का कौन सा पहर था। अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से जमीला का कांधा हिलाया। जमीला ने आँख खोली। उसने जो मंजर देखा वो हैरान रह गई। 4 हरे रंग के साए जिन पे सिर्फ आंखें थीं हवा में लहरा रहे थे। जमीला की खौफ के मारे आवाज़ बंद हो गई। उसने नुमान को उठाना चाहा, मगर वो अपनी जगह पर ही जम गई। फिर वो साए काफ़ी देर तक कमरे में घूमते रहे। उनमें से एक साए से आवाज़ आई, घर वालों की फर्मा बरदारी किया करो। उस साए ने ये बात 2-3 मरतबा दोहराई और फिर गायब हो गया। जमीला के तो जैसे होश उड़ गए। वो मुसलसल कपकपाए जा रही थी। सर से पाँव तक पसीने में शराबूर थी। डरते डरते उसने नुमान को उठाया। नुमान उसकी हालत देखकर काफ़ी घबराया हुआ था। क्या हुआ, तुम इतना कपकपा क्यों रही हो?
मगर जमीला की तो आवाज़ ही बंद हो चुकी थी। खैर जैसे तैसे करके नुमान ने उसे तसल्ली दी, पर जमीला को इस पहर के बाद नींद नहीं आई। सुबह नुमान ने अकबर को सारी तफसील बताई और पूछा, कहीं वो वापस तो नहीं आ गए? अरे नहीं भाई, वो नहीं आ सकते, ये तो कुछ और ही लगता है मुझे। अकबर ने सोचते हुए कहा, भाई क्यों ना हम पीर बाबा के पास चलें? नुमान ने राय दी। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि नुमान की दुकान के आदमी का फ़ोन आया। उसने कहा कि आपके भाई आए हैं और कुछ सामान ले गए हैं। कहा आपने मंगवाया है? कौन भाई, किसका भाई? मेरे भाई तो यहाँ मेरे पास सामने बैठे हैं और मैंने किसी को नहीं भेजा। किसको दे दिया है सामान? कोई भी आकर कहेगा कि वो मेरा भाई है तो तुम उसे सामान उठाकर दे दोगे? क्या तुम मेरे भाई को पहचानते नहीं हो? और ऊपर से फ़ोन भी उसके जाने के बाद कर रहे हो। अब बताओ मैं क्या करूं? नुमान बहुत गुस्से में था। जी वही आए थे, दुकान पर काफ़ी वक्त गुजारा और कह रहे थे कि नुमान ने ही सामान मंगवाया है। हमने तो जी आपका भाई समझकर सामान दे दिया, नौकर बोला। नुमान ने फ़ोन रख दिया। नुमान को परेशान देखकर अकबर ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई आपका बहरूप लेकर दुकान से सामान ले गया? नुमान बोला। अकबर ने नुमान को चलने के लिए कहा। दोनों गाड़ी में बैठे और अकबर ने गाड़ी पीर बाबा की कुटिया को जाने वाले रास्ते पर डाल दी। घर में जमीला, तहरीम, दुर्दाना और गुड्डू सभी एक कमरे में जमा थे। अचानक गुड्डू ने बहुत ही भारी मर्दाना आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, उसे रोको वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर गुड्डू उठा और दीवाना वार चीखने लगा। ये देखकर दुर्दाना और जमीला की चीखें निकल गईं। छत तक पहुंचकर बोला, छोड़ दो उस बच्चे को, अभी रोको वरना इस बच्चे की खैर नहीं। अकबर और नुमान बाबा की कुटिया तक पहुंच चुके थे। दोनों ने उन्हें सलाम किया। घर में दाखिल होने वाले सब वाक़यात की तफसील बताई। बाबा कहीं ये वो तो नहीं? अकबर ने पूछा। बाबा ने अकबर की आंखों में देखा, मुस्कुराए और सिर्फ सर हिला दिया। मैं ये तावीज़। अभी बाबा ने इतना कहा ही था कि अकबर के फ़ोन की घंटी बजी। उसने बाबा से माजरत की। दूसरी तरफ दुर्दाना थी। उसके लहजे में काफ़ी परेशानी और खौफ था। अकबर आप जहाँ भी हैं वापस आ जाएं, वो फिर आ गया है। ये कहकर दुर्दाना ने फ़ोन रख दिया। बाबा तावीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको चलना पड़ेगा, अकबर ने कहा। बाबा ने ज़रूरी सामान लिया और दोनों भाइयों के साथ हवेली पहुँचे। बाबा ने जैसे ही हवेली के मरकज़ी दरवाजे से कदम अंदर रखा तो ज़ोर से हवा चली, जैसे आंधी आ गई हो। बाबा ने पूरी हवेली पर नज़र दौड़ाई। बिना कुछ पूछे ही उसी कमरे की तरफ गए जहाँ सब मौजूद थे। अकबर और नुमान भी उनके पीछे हो लिए। कमरे में जाते ही नुमान की चीख निकल गई। बाबा ने सबको एक तरफ किया और गुड्डू की तरफ मुतवज्जे हुए। तो फिर आ गया? मैं आया नहीं, लाया क्या हूँ? ये मासूम बच्चा मुझे लाया। मुझे इस घर से निकालने के लिए जो तुमने तावीज़ बांधे थे वो इस बच्चे ने खोल दिए। पर मौलवी, तू तो ये जानते हुए भी कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हमें यहाँ से निकाला था। गुड्डू के जिस्म में समाया हुआ जिनज़ादा बोला, मैं तो इस घर के लोगों को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ रहूँ वहाँ के लोग नेक और परहेजगार हों। जिनज़ादा बोला, वो सब बात सही है, पर तुम अभी इस बच्चे को छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम नेक हो, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। बाबा के काफ़ी समझाने पर भी वो ना माना तो बाबा ने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, जिसे सुनते ही गुड्डू ज़ोर से नीचे गिरा। मगर खुशकिस्मती से अकबर वहाँ मौजूद था। उसने उसे थाम लिया। बाबा अपनी तिलावत में मशगूल थे। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने अपने थैले से कुछ तावीज़ और कीलें निकाली। अकबर को देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके ये तावीज़ यहीं बांध दो और दो पहले जो कीलें थीं वो यहीं गाड़ दो। अकबर ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने आखिरी कील गाड़ी, एक दिल खराश चीख सुनाई दी। फिर मुकम्मल खामोशी हो गई। बाबा ने कहा, गो कि ये जिनज़ादा नेक था, लेकिन अगर घर में कुछ बुरा हो तो इसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए सिर तंग करके समझाने की कोशिश करता था। उस दिन के बाद अकबर ने वहाँ एक लोहे का दरवाज़ा लगवा दिया जहाँ तावीज़ और कीलें गाड़ी हुई थीं। खैर नुमान और उसके घर वाले वापस शहर आ गए। नुमान 2 दिन पर दुकान गया और अपने नौकर से पूछा कि कौन आया था। दुकान पर मेरा नाम उसने क्यों लिया और सामान लेकर कहाँ गया।
नौकर ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं आया था जो आपके नाम पर सामान ले गया हो। क्यों तुमने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा था कि अकबर भाई सामान लेके? नहीं सेठ, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया आपको। नुमान ने दुकान का जायज़ा लिया तो दुकान में सभी सामान पूरा था। खुदा जाने ये क्या मौजा था, तावीज़ वाले बाबा का कमाल था या फिर पहले वाली बात जिनसादे की शरारत थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।